Hi everyone, my name is Mehak Dhawan. I am owner of IELTS Domination and an IELTS trainer. And today IELTS Domination is collaborating with Upgrad so that you have a brief guide that you need to follow for your IELTS test. And in this video, we're going to cover grammar portion as in IELTS grammar that you need to cover so that you get your desired band score. So talking about IELTS grammar, these are the major components that you need to cover for your IELTS test. Number 1, complex. Number 2, compound. Number 3, idioms or phrases. Number 5, connecting words. And number 6, correct punctuations. Now let's understand everything in detail. Complex and compound, make sure that you are very well versed with these two sentence structures because these are advanced, formal and these act as your gate passes. इसका मतलब अगर ये दोनों आपके आंसर्स के अंदर होंगे you will be able to get a high band score, otherwise you won't be even qualified for that. Talking about idioms and phrases, idioms remember we use in your IELTS speaking and phrases remember we use in your IELTS writing because phrases are more on the formal side तो हम writing के अंदर use कर सकते हैं. Idioms they are more on the informal side और semi formal you can say तो वो हम speaking के अंदर use कर सकते हैं, right? Remember that writing is completely on the formal note, your writing module, right? तो हम वहाँ पे कुछ भी informal tone या informal vocabulary का use नहीं कर सकते. Connecting words. As the name suggests, these are the words which will help you to connect two or more sentences. ठीक है? So connecting words बोलो, linking words बोलो, one and the same thing. Again, these are very important as this make your writing more formal. And again, आपको ideas present करने में भी easy रहता है अगर आप linking words अच्छे से use करते हो. Correct punctuations. अगर मैं IELTS की बात करूँ, so most important and scoring punctuation mark that is used in IELTS writing is a comma. ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही कि आप और कोई पंचुएशन मार्क यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हो बट रिमेंबर कॉमा एक ऐसा पंचुएशन मार्क है जो इंपॉर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है और फॉर्मल भी है, तो इजीली यूज भी हो जाता है. अब हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस इन डिटेल बिकॉज यहाँ पे बच्चों को मेजर दिक्कत आती है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक इंग्लिश मीनिंग और फिर मैं आपको बताऊंगी आइल्स इंग्लिश का मीनिंग. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एटलीस्ट one independent clause and at least one dependent clause where dependent means incomplete and independent means fully complete. Confusing लगा? इसको हम IELTS इंग्लिश की तरफ समझते हैं. सपोज आप एक सेंटेंस को लो, एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. Suppose part 1 is complete, it means it has basic separate individual meaning and you can use that in the normal daily conversation. Whereas the other part that is incomplete, that does not have any meaning. And if you use that in the normal daily conversation, the listener will not able to identify that what you are trying to communicate. Why? Because that part is meaningless. अब जब ये meaningful part और meaningless part को हम combine कर दें with the help of comma and conjunction कौन सी? subordinating conjunction, then that forms your complex sentence. और भी सिंप्लीफाई करूं इसको तो इसका मतलब आपने ये वाले वर्ड्स अपने आंसर्स के अंदर यूज करने हैं, ब्लू बॉक्स वाले वर्ड्स, बट रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा. कॉमा नहीं यूज करोगे गलत हो जाएगा, सो मेक श्योर कि आप कॉमा यूज करो. बिकॉज मैंने काफी बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं, वर्ड्स यूज करते थे, कॉमा यूज नहीं करते और फिर क्वेश्चन आता है कि मैम हमारा तो मार्क पैड नहीं आया हमारे. यही रीजन है. Subordinating conjunctions or you can say complex sentences, these are incomplete without a comma. अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम ये तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज करें. मैं वो वर्ड्स मार्क कराऊंगी जो आप अपने आंसर्स के अंदर इजीली यूज कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा कितने वर्ड्स यूज करने हैं? मिनिमम 2 करने हैं राइटिंग टास्क 2 के अंदर. मैक्सिमम जितना करो उतना बढ़िया, बट मिनिमम 2 दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट. अब बताती हूँ ऐसे वर्ड्स जो आप इजीली यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर. प्लीज मार्क इट और राइट इट डाउन. Although, as, because, if, once, since, whereas, whether and while. मैं ये नहीं बोल रही कि आप और कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हो, बट जो मैंने अभी टिक मार्क कर रही हैं ये वो वाले वर्ड्स हैं जो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर. ठीक है, मिनिमम 2 करने ही करने हैं, मैक्सिमम जितना मन करे उतना करो. राइटिंग और फॉर्मल होगी, एडवांस्ड आएगी, अच्छी बात है. ठीक है, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू.
एक टिप बताती हूँ, अगर ये समझ में नहीं आता ना कि कौन सा वर्ड यूज करना है या याद नहीं रहता कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने के, तो वर्ड्स का ध्यान रख लो कि आपने अपने आइडियाज इस तरीके से जनरेट करने हैं कि कम से कम 2 वर्ड यूज हो ही जाए। अब अपनी स्ट्रेंथ खुद देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ज्यादातर ऑल्दो एक ऐसा वर्ड है जो बहुत इजीली यूज हो जाता है, इसके अलावा वाइल एक ऐसा वर्ड है जो बहुत इजीली यूज हो जाता है, मतलब पैराफ्रेजिंग के अंदर ही, लाइन नंबर 1 के अंदर ही आप ये वाले वर्ड यूज कर सकते हो। वर्ड्स को पकड़ो, इजी रहेगा कि आपने ये वाले वर्ड्स अपने आइडिया के अंदर यूज करने ही करने हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नंबर 1, मेनी चिल्ड्रन प्ले कंप्यूटर गेम्स कॉमा वाइल अदर प्रेफर स्पोर्ट्स। 2 पार्ट्स हैं, मेनी चिल्ड्रन प्ले कंप्यूटर गेम्स, सेकंड अदर प्रेफर स्पोर्ट्स। अब देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये 2 सेंटेंसेस बने, मेनी चिल्ड्रन प्ले कंप्यूटर गेम्स फुल स्टॉप। अब ये पार्ट कंप्लीट है, ठीक है, दिस हैज सेपरेट इंडिविजुअल मीनिंग। मैं अगर किसी को ये बोलूंगी तो सामने वाला समझ जाएगा कि मैं क्या कहने कम्युनिकेट कर रही हूँ, वाई, बिकॉज दिस इज कंप्लीट। अदर प्रेफर स्पोर्ट्स, दूसरे स्पोर्ट्स प्रेफर करते हैं, दिस इज इनकम्प्लीट, राइट। अगर मैं ये प्रेफर सिर्फ यूज करूं अदर प्रेफर स्पोर्ट्स, तो सामने वाला क्या क्वेश्चन करेगा कि कौन अदर, किससे कंपेयर करके बोल रहे हो, है ना। तो एक पार्ट कंप्लीट, दूसरा पार्ट इनकम्प्लीट, which gets clubbed together with the help of comma and conjunction. Comma sentence breakage, while is your conjunction. अब जो कॉमा आएगा वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। कॉमा आप वहां पे लिखेंगे whenever the other part of the sentence is about to begin, just before that. जो कंजंक्शन की पोजीशन है वो डिपेंड करेगी, या तो वो आएगी मिडिल में या वो जाएगी बिगिनिंग में, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे मिडिल में आई, अगले एग्जाम्पल में आप देखोगे बीच में आएगी, स्टार्टिंग में आएगी। When he won the award, everyone cheered. When he won the award, that's A part. Everyone cheered, that's B part. When he won the award, now this is incomplete. Everyone cheered, this is complete. Which gets clubbed together with the help of your conjunction and a comma. Comma कहाँ पे आया? Sentence breakage पे. Conjunction कहाँ पे आया? Beginning पे. Third, although Matt was running late, comma, he seemed relaxed. Although Matt was running late, that's A part, incomplete part, which gets clubbed together with the help of comma. Other part, he seemed relaxed. Now this is complete part. Incomplete, complete को club कर दिया with the help of comma and a conjunction. All right. Now let's come to compound sentences. देखो, complex में क्या था? एक part complete था, दूसरा part incomplete था। कंपाउंड में क्या होता है? बोथ द पार्ट्स आर कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, कंप्लीट सेंटेंसेस, इसका मतलब मीनिंगफुल सेंटेंसेस विच गेट्स क्लब टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कॉमा एंड अ कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स में कौन सी कंजंक्शन होती है? सबऑर्डिनेटिंग। कंपाउंड में कौन सी होती है? कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स के लिए आई मेड यू राइट फ्यू वर्ड्स जो आप याद कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू। अगर कंपाउंड की बात करूं, सो देयर इज एन एक्रोनिम व्हिच यू कैन यूज, दैट इज फैन बॉयज। इसका मतलब F स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। अगेन इसका मतलब क्या है कि आपने ये वाले वर्ड्स अपने आंसर्स के अंदर यूज करने हैं, बट विद द हेल्प ऑफ कॉमा एंड अ कंजंक्शन। दोबारा बता रही हूँ, अगर कॉमा मिस होगा तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कंपाउंड के अंदर नहीं आएंगे, एंड देन अगेन दैट वोंट बी एक्सेप्टेड, स्कोर नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि इन वर्ड्स के साथ आप कॉमा भी यूज कर रहे हो। अब दोबारा वो वाले वर्ड्स आपको मार्क करवाती हूँ या लिखवाती हूँ जो आप अपने आंसर्स के अंदर और इजीली यूज कर सकते हो, जैसे एंड, बट और सो। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो आप अपने आंसर्स के अंदर इजीली यूज कर सकते हो, फॉर्मल जाएंगे एंड आइडिया जनरेशन के अंदर भी इजी रहेगा। दोबारा इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, जैसे फॉर, नॉर, कल को ये बोल दो कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं, बट अगेन जो मैंने लिखवाया ये वो वाले वर्ड्स हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हो। अब इनको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल, he was hungry, comma, so he ate. He was hungry, that's A part. He ate, that's B part. मैं किसी को ये बोलूँ उसे भूख लग रही है, कंप्लीट है, वो समझ जाएगा। मैं किसी को बोलूँ उसने खाना खाया या he ate, again it is complete, समझ जाएगा। Which gets clubbed together with the help of comma and a conjunction. दोबारा comma कहाँ पे आया? Whenever the other part of the sentence is about to begin, just before that. Now, Lalit opened the door, comma, and he looked outside. Lalit opened the door, that's A part. He looked outside, that's B part, which gets clubbed together with the help of comma and.
Third, I'm good at swimming, comma, but I don't like it. I'm good at swimming, that's A part. I don't like it, that's B part, which gets clubbed together with the help of comma and but. Next, it was late, comma, yet I wasn't tired. It was late, that's A part. I wasn't tired, that's B part, which gets clubbed together with the help of comma and a conjunction. दोबारा बताती हूँ. कॉम्प्लेक्स में रिमेंबर कि मिनिमम 2 यूज आप कर रहे हो, कंपाउंड में रिमेंबर मिनिमम 2 यूज कर रहे हो, मैक्सिमम जितना करोगे उतना अच्छा है. ठीक है, कॉमा ध्यान रखना है कि कॉमा यूज करना ही करना है, उसके बिना ये गलत हो जाएंगे. एंड या मेजर यही रूल्स हैं. कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखवा दिए हैं, प्लीज कीप अ नोट ऑफ इट. मैंने आपको कंपाउंड के अंदर भी इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवा दिए हैं एंड आपको मैंने एक्रोनिम बता दिया है, फैन बॉयज.